Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP, Residence, Kota. So today we will start the 12th lecture of light, that is defects of human eye. So following are the defects. Number 1 is myopia or short sightedness, or we can say that is near sightedness, second defect is hypermetropia, or we can say hyperopia, or we can say that is farsightedness, or that is long sightedness. The second effect, number third, the combination of these two is known as presbyopia. And fourth is astigmatism. That is, fifth is color blindness. And sixth is cataract. Okay, we will define all the defects one by one. So first of all, these three are important, 1, 2 and 3, numerical based on these three. Okay. So first of all we will discuss the myopia. Myopia बोले शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस. अब देखिए ये क्लियर है, ये शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेड का मतलब है देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ विजन आई, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज एट 25 सेंटीमीटर और कैपिटल डी, एंड फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज एट इन्फिनिटी. अब डिफेक्ट कैसे होगा? आइदर द नियर पॉइंट विल मूव अवे द आई और द फार पॉइंट विल मूव टुवर्ड द आई. जो सबसे पहले है, वी विल डिवाइड ऑल द डिफेक्ट्स इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज इट, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द डिफेक्ट. Second point is, what are the causes of this defect? Causes of defect. And third is, C point is, what are the corrections for this correction? These are the 3 points. Correction of defect. So first of all, how you will recognize it? First point. Okay, it's the eye lens. Okay, it is retina. Here is near point of defect. Normal eye is, this point is near point, and near point of normal eye. Okay, far point कहाँ होता है इसका? Far point at infinity. Far point of normal eye. Anyhow, now with the help of this figure, what is the range of vision? Range of vision of normal eye is capital D. Capital D means this one is capital D, 25 centimeter to infinity. It is for normal eye. Now how you will recognize this defect? The eye short sightedness means near point is correct. The eye can see the nearby object clearly, but unable to the far point. Far point it moves towards the eye. So how you will recognize? The defected eye can see the nearby objects clearly.
क्लियरली मीन्स नियर पॉइंट करेक्ट है, बट अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स, बट अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स. Is it clear? It means near point is correct and far point is defected. और far point ये move कर गया towards the, ऐसे move कर गया यहाँ. Here is the n dash. It's the far point of defected eye. मान लीजिए ये डिस्टेंस है सपोज स्मॉल डी, स्मॉल डी पर पहुंच गया है. ओके, it means the range of defected eye is capital D to small d, डिक्रीज हो गया है. मैं ये भी कह सकता हूं the eye can see the objects clearly placed between n and n dash. इसके बीच रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकती है, बट दिस डिफेक्टेड आई इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बियॉन्ड एन डैश. तो द defected eye can see the objects placed between n and n dash. ये इसके बीच कहीं भी रखा हो देख सकती है, बट अनएबल टू see the objects placed beyond n dash. The objects placed beyond n dash, इसके बाद में रखा हुआ आई नहीं देख सकती है. नाउ व्हाट इज द रीजन? देखिए, अगर दिस पॉइंट इज करेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, द आई कैन सी क्लियरली. इमेज कहां बनेगा इसका? रेटिना पर, इस पॉइंट पे बनेगा. इट कैन सी क्लियरली. ओके, बट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. यहां रखा हुआ है, ऐसे रेज आ रही थी, इन्फिनिटी से रेज कैसे आएंगी? पैरेलल. तो इट विल फोकस बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले फोकस हो जाएगा. डू यू नो पैरेलल रेज दे विल मीट एट फोकस पॉइंट. तो फोकस पॉइंट ये होना चाहिए था इस पॉइंट पर, फोकल लेंथ भी होनी चाहिए थी, फोकल लेंथ ये हो गई कम. तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कॉज. कैसे फाइंड करूंगा? व्हाट इज द कॉज? सेकंड पॉइंट इज कॉज. देखिए बी पॉइंट है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बी पॉइंट? कॉज ऑफ डिफेक्ट. तो देखो, कॉज ऑफ डिफेक्ट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज. इतना होना चाहिए था, ये हो गई. तो फोकल लेंथ, फर्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या हुआ? इज डिक्रीज्ड, कम हो गई पहले से. नहीं, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना कि नहीं, फोकल लेंथ कम नहीं हुई, आई इतनी होनी चाहिए थी, वो यहां तक बढ़ गया. मीन्स साइज ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज्ड. सेकंड पॉइंट देखिए, साइज ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज्ड. फोकल लेंथ ठीक है, वही है, लेकिन ये साइज एनी हाउ बाई डिफेक्ट आई यहाँ होनी चाहिए थी, ये वाली आ गई. रेटिना इस पॉइंट में होना चाहिए था, यहाँ आ गया. तो साइज ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज्ड. चलिए, इस पॉइंट को थर्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. क्या लिखा था? फोकल लेंथ इज डिक्रीज. तो फोकल लेंथ होता है, यू नो वेरी वेल, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन. अब देखिए, म्यू एल और म्यू एस तो चेंज हुए नहीं. म्यू एल मीन्स ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विट्रस ह्यूमर, और म्यू एल मीन्स रिफ्रैक्ट म्यू एस, और वी कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर. सेम होता है 1.336. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39396 था. ये तो चेंज हुआ नहीं. फोकल लेंथ चेंज होने का मतलब R1 R2 डिक्रीज हो गए. तो मैं कह सकता हूं रेडियाई ऑफ आई लेंस क्या हुआ? इज या आर डिक्रीज्ड. भाई आर डिक्रीज हो, इसलिए तो आप डिक्रीज हुआ. चलिए, ये भी नहीं कहता. चौथा पॉइंट देखिए, मैं ही कहता हूं नहीं, ये ऑल आर करेक्ट. सिर्फ जो है आई लेंस का रेडियाई कम होने का मतलब एंस ऐसा हो गया, तो रेडियस पहले से कम हो गई. लेकिन कर्वेचर का क्या हुआ? कर्वेचर और कर्वेचर ऑफ आई लेंस
क्या हुआ, इंक्रीज्ड। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेंस ऐसा था, कर्वेचर कम था, ऐसे होता जाएगा, थिक होता जाएगा, रेडियस कम होती जाएगी, फोकल लेंथ कम होती जाएगी, लेकिन कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा कर्व हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ आई डिफेक्ट। क्लियर? नाउ हाउ यू विल करेक्ट इट, कैसे करेक्ट करें देखो। Object is placed between n and dash, the eye can see clearly. But if it is placed beyond n dash, the eye is unable to see the objects. तो मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा हो लेकिन आई देख सके, तो आई तो एन डैश के बियॉन्ड देख ही नहीं सकती है, तो क्या करूँगा मैं, विद द हेल्प ऑफ एनी लेंस, किसी लेंस की हेल्प से, ओके, विद द हेल्प ऑफ एनी लेंस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मीन्स u इज हाउ मच, और इमेज बनना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, यहां होना चाहिए इमेज, u इज v इज टू व्हाट द डिस्टेंस, दैट इज d माइनस d, दोनों इधर है, यहां इमेज बनना चाहिए एट द नियर पॉइंट। ये तो करेक्ट है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ लेंस। कैसे करूंगा, these 2 points are most important, you know very well, 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u, or 1 upon f will be equals to 1 upon minus d minus 1 upon infinity, it becomes 0. So what is the value of f? Minus d. Minus sign shows that the lens, with the help of that we will form the image of object which is placed at infinity must be at n dash, it is n dash. तो नेचर क्या है, नेगेटिव साइन शोज दैट लेंस इज कॉनकेव, कॉनकेव लेंस रखूंगा, तो कॉनकेव लेंस मैंने यहां रख दिया, देखिए एट द कॉनकेव लेंस, ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर द रेज, यू नो वेरी वेल। इमेज मुझे यहां बनाना है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, इट इज डाइवर्जिंग, ऐसे रेज आ रही थी, थोड़ा डाइवर्ज कर देगी, तो ये रेज जो आ रही थी थोड़ा सा यहां से डाइवर्ज होगा, इट इज डाइवर्ज। अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो हियर विल बी द इमेज, इमेज इस पॉइंट पर, और फाइनली इट फॉर्म्स एट रेटिना, द आई कैन सी क्लियरली। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन, इसको रब करता हूं मैं, देखिए, फॉर न्यूमेरिकल, फॉर इट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, u is the distance of far point of normal eye, that is minus infinity, और v होगा distance of far point of defected eye, that is v is equals to minus d। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। तो इट वाज द फर्स्ट डिफेक्ट, दैट इज मायोपिया। अब लेते हैं सेकंड डिफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर, सेकंड पॉइंट, hypermetropia, or we can say that is far sightedness. It is clear, far sightedness means the eye can see, defected eye can see the far objects clearly but unable to see the nearby objects clearly, recognize. First point, how you will recognize the defect, means the defected eye can see the far sighted means far point is correct but unable to see the nearby objects. So the defected eye can see
फार साइटेड, फार का करेक्ट है, द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, मीन्स विच पॉइंट इज डिफेक्टेड, नियर, और ये तो दूर ही जा सकता है, नॉर्मल आई के लिए तो पास में नॉर्मल आई भी नहीं देख सकती। तो ये देखिए, इट इज आई, ओके, एट द फार पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, far point is correct, infinity is the far point of normal eye, और सेम इट इज फॉर डिफेक्टेड आई के लिए भी करेक्ट है, दिस पॉइंट इज एट कैपिटल डी एट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, एन, ये इधर शिफ्ट हो गया, यहां पे आ गया एन डैश एट द नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। अब देखिए क्या रेंज में क्या इफेक्ट पड़ा, इट इज कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर, इट इज स्मॉल डी, जहां पर नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है, तो द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बियॉन्ड एन डैश क्लियरली, बट अनएबल टू सी बिटवीन एन एंड एन डैश। तो द डिफेक्टेड आई कैन सी the objects placed beyond n dash, n dash के बियॉन्ड रखे देख सकती है वो, क्लियर। इसकी रेंज हो गया कैप स्मॉल डी टू इन्फिनिटी डिफेक्टेड आई का, बट अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिटवीन एन एंड एन डैश। तो रेंज हो गया इसका, रेंज ऑफ डिफेक्टेड आई इज फ्रॉम स्मॉल डी टू इन्फिनिटी, इसके बियॉन्ड रखी है, इट कैन सी क्लियरली, इज इट क्लियर। नाउ व्हाट इज द कॉज, अब कॉज देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, आई कैन सी क्लियरली, इन्फिनिटी का मतलब ये वाला पॉइंट, ये क्लियर है, ये तो डिफेक्ट है ही नहीं इस पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, इट कैन सी क्लियरली, ओके। बट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन, यहाँ पर रखा हुआ है एन पर, तो देखिए रेज यहाँ से जाएंगी, ऑब्जेक्ट ये रखा है, तो ये इट विल फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, यहाँ बनेगा इसका, ये इमेज फॉर्म दैट इज ब्लर, ओके। तो फोकल लेंथ होना चाहिए था ये, अब फोकल लेंथ हो गया यहाँ पर, ये फोकल लेंथ, तो व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज, तो मैं कह सकता हूँ 4 पॉइंट थे, ऊपर का हटाता हूँ मैं, ये नोट कीजिए, व्हाट आर द कॉजेज, कॉजेज में नंबर 1, ये पहले ही मतलब रेटिना के बाद ये फोकस होगा, तो फोकल लेंथ, लेंथ ऑफ आई लेंस क्या हुआ, इतनी होनी चाहिए थी, इतनी हो गई, इंक्रीज। अगर ये नहीं कहूं तो ये भी कह सकता हूं ना, साइज ऑफ आई बॉल छोटा हो गया है, साइज ऑफ आई बॉल क्या हुआ, इज डिक्रीज्ड, ओके। चलिए ये भी नहीं कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो गया, रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर इंक्रीज्ड, रेडियाई फोकल लेंथ इंक्रीज और रेडियस इंक्रीज हो गया, और वी कैन से कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या हुआ, डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गया है। ऑल आर सेम थिंग, सारे पॉइंट एक ही हैं। अब नाउ व्हाट इज द करेक्शन, करेक्ट कैसे करूं मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट रखा हो, यहां पर रखा हो ऑब्जेक्ट, इट कैन सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो मैं फिगर दूसरा बनाता हूं उसका, देखिए एट द आई
ओके, यू नो वेरी इट इज द एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज d मीन्स u इज इक्वल्स टू माइनस d, और इमेज मुझे यहां बनाना है, इमेज दिस डिस्टेंस इज v इज इक्वल्स टू माइनस d, तो व्हाट लेंस मस्ट आई यूज, क्या यूज करना चाहिए, ये n और ये था n डैश, ये बोथ आर u की वैल्यू मालूम है, v की वैल्यू मालूम है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, तो f इज इक्वल्स टू 1/v मीन्स 1/- d minus 1/capital D. We can easily find that is what is the value of f, f फाइंड कर सकता हूँ, तो 1/f इज कुछ हो गया d कैपिटल D, और ऊपर गया दैट इज माइनस, इट इज माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज स्मॉल d कैंसिल, दैट इज माइनस कैपिटल D प्लस स्मॉल d, हियर इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f इसको होगा स्मॉल d कैपिटल D डिवाइडेड बाई d माइनस कैपिटल D, दैट्स पॉजिटिव बिकॉज स्मॉल d इज ग्रेटर देन कैपिटल D, f पॉजिटिव आ रहा है, f पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स नेचर ऑफ लेंस कितना होना चाहिए, दैट इज कॉन्वैक्स, कॉन्वैक्स लेंस यूज करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, कॉन्वैक्स लेंस यहां रखूंगा, ओके, इट द कॉन्वैक्स। अब ऑब्जेक्ट मुझे मालूम है यहाँ रखा हुआ है, तो रेज कैसे जाएंगी, देखिए यहाँ से रेज ऐसे जा रही है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ये वाली रेज, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, दिस इज कन्वर्जिंग, तो ये रेज आ रही थी, थोड़ी कन्वर्ज ऐसे होंगी, अंदर की तरफ बैंड कर दिया इसने, अब पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा लगता है कि रेज यहाँ से आ रही हो, ये तो हियर विल बी द इमेज, और फाइनली इमेज कहाँ बनेगा इसका, रेटिना पर, वी कैन सी द आई ऑफ कैन सी द क्लियरली, तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला व्हाट द वैल्यू ऑफ f एंड व्हाट इज द नेचर क्या होना चाहिए इसका, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर फॉर न्यूमेरिकल, u is equals to the distance of near point of normal eye, always इस डिफेक्ट के लिए, that is equals to minus capital D, and v is the distance of near point of defected eye, it is most important for numerical, ओके, दिस वाज द सेकंड डिफेक्ट। अब देखिए थर्ड डिफेक्ट देखिए जरा, ड्यू टू द एज, थर्ड डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया, ओके, प्रेस बायोपिया, थर्ड इज प्रेस बायोपिया, ड्यू टू द एज the ciliary muscles are weakened, so it is unable to change the focal length of eye lens according to need, मतलब नियर पॉइंट भी डिफेक्टेड होता है, फार पॉइंट भी डिफेक्टेड होता है, ड्यू टू द एज ऐसा होगा, इट इज आई, ये नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, और डिफेक्टेड अब आई में ये शिफ्ट हो गया इधर, एंड एस पे आ गया, व्हाट इज द फार पॉइंट क्या था, एट इन्फिनिटी फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ये इधर शिफ्ट हो गया, एन डबल डैश, ओके, सपोज इट इज स्मॉल डी और इट इज d1 d2 लिख सकते हैं, d1 और ये d2, ये शिफ्ट हो गया, अब रेंज रह गया बिटवीन दिस, due to the age ciliary muscles are weakened, so the ciliary muscles are unable to change the focal length of the according to need, कि यहाँ बना सके इमेज, तो ये पॉइंट भी आगे शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट भी आगे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब हुआ ये मायोपिया भी हो गया, और ये वाला कौन सा हुआ, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया।
तो फॉर करेक्शन वी विल यूज बाईफोकल लेंस। ये कुछ इस टाइप का होता है, ये लेंस है, इधर नीचे होता है कॉन्वेक्स, नीचे वाली साइड को देखने के लिए, और ये होता है कॉनकेव लेंस फॉर मायोपिया, और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया। वैसे भी हम जिसको यूज करते हैं जब नीचे देख रहे हैं तो ये वाला लेंस यूज होता है, ऊपर देख रहे हैं तो ये वाला लेंस यूज होता है। तो इट इज प्रेस बायोपिया। वन क्वेश्चन फॉर डिपेंड्स ऑन दिस। ओके, वन क्वेश्चन। The eye, defected eye, can not see, या can see between 40 centimeter to 3 meter. Okay, write the name of defect. Okay, what type of lens is used for correction? What type of lens is used for correction? Find the focal length of lenses used. अब ये तो क्लियर है, ये दो पॉइंट्स थे, देखिए ये आई, ये नियर पॉइंट यहां से कैपिटल डी से 25 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हो गया इधर कितने सेंटीमीटर पर, 20, दैट इज 40 सेंटीमीटर पर, और ये जो इन्फिनिटी पे था एट इन्फिनिटी ये शिफ्ट हो गया इधर, हाउ मच, दैट इज 3 मीटर पर शिफ्ट हो गया। इट मीन्स कौन सा डिफेक्ट है, द आई इज डिफेक्टेड बाई मायोपिया एंड hypermetropia, or we can say that is press myopia. So we will use double lens for correction. We will use bifocal lens. अब कौन कौन सा यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको करेक्ट करूंगा फॉर मायोपिया। देखिए अभी मैं रब करता हूं फॉर मायोपिया, याद है आपको व्हाट द वैल्यू ऑफ यू माइनस इन्फिनिटी, वी कहां पहुंच गया 3 मीटर, तो व्हाट द फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज we can say that is 1/f is equals to 1/3 minus 3 or minus minus plus 1/infinity, that is f is equals to 3 meter, that is minus 3 meter, minus sign shows it is concave lens of focal length, how much, that is 3 meter. How we will find the power of this lens, क्या यूज करते हैं, P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, दैट इज मीटर है तो 1/3, इज इट क्लियर, मीटर में ही है ना, 1/3 डायोप्टर प्लस और माइनस, दैट इज 3 मीटर माइनस 1/3d, इज इट क्लियर, माइनस का है ये। अब देखिए फॉर दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, इसको देखिए क्या आएगा, फॉर
hypermetropia, object must be at this point. U is minus 25 centimeter, V is minus 40 centimeter. You have to find F. So 1 upon F is equals to 1 upon V minus 1 upon U, that is equals to 1 upon that is minus 40, or minus minus plus 1 upon 25, that is LCM will be 200. 5 minus 5 और ओके प्लस का 8, दैट इज 1 अपॉन एफ इज कुछ हो गया 3/200 और एफ इज कुछ टू प्लस 200/3 सेंटीमीटर. इट इज कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20/200/3 सेंटीमीटर. व्हाट द पावर? दैट इज टू 1 अपॉन एफ इन मीटर और 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर में गिवन है अपॉन 200/3. इट इज क्लियर. एफ इज 200/3, 1 अपॉन एफ है ये, तो एफ इज 200/3, दैट इज टू 100 कैंसिल प्लस 3/2 diopter. It's the lens used. Is it clear? So these are the defects. 3 defects: myopia, hypermetropia and presbyopia. Okay. Now next देखिए जरा. थर्ड डिफेक्ट था एस्टिग्मेटिज्म. फोर्थ, क्या है ये? इट इज ड्यू टू द अनयूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉर्निया. इट इज ड्यू टू अनयूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉर्निया. मीन्स इट मस्ट बी कंप्लीटली स्फेरिकल. ये स्फेरिकल नहीं है तो ये डिफेक्ट होता है. क्लियर. अब इसमें क्या दिखता है? नॉर्मल आई को ये जैसे वायर गेज है इस टाइप का दिखेगा. वायर गेज, ये वायर गेज फॉर नॉर्मल आई. नॉर्मल आई अगर डिफेक्टेड आई देख रही है, फॉर डिफेक्टेड आई यही दिखेगा. डिफेक्टेड आई ये दिखेगा, या तो मुझे इस टाइप का दिखेगा, ऐसा दिख रहा है तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा. ओके, इस टाइप से दिखेगा. और थोड़ा साइज बड़ा कर सकते हैं आप. इट इज यहां से दिखेगा इस टाइप से, ऐसे ये वाला दिखेगा वायर गेज. अगर मुझे हॉरिजॉन्टल वाले स्ट्रेट दिख रहे हैं तो ये वर्टिकल वाले कर्व दिखेंगे. और ऐसा भी हो सकता है अगर मुझे वर्टिकल वाले स्ट्रेट दिख रहे हैं तो ये वाले कुछ ऐसे दिखेंगे. ओके, ये दोनों में से कोई एक दिख सकता है. इट इज क्लियर. तो हाउ यू विल करेक्ट इट? इट इज करेक्टेड by using the cylindrical lenses. मोटे मोटे थिक लेंस होते हैं ये. नाउ नेक्स्ट इफेक्ट आता है, दैट इज फिफ्थ डिफेक्ट है कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस फिफ्थ. You know very well cornea is made up of cones and rods. Rods are responsible for intensity and cones are responsible for color. और मैंने ये भी बताया था कि rods they are activated in dim light but cones are activated in dense light. ज़्यादा लाइट नहीं होगी तो कलर हम पहचान नहीं सकते हैं. There are only 2 size of RBG, रेड कलर का कोन, ब्लू कलर का कोन और ग्रीन कलर का कोन. ये 3 होते हैं बिकॉज ऑल दीज आर द प्राइमरी कलर्स. ऑल द कलर्स आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ दीज 3 कलर्स एट डिफरेंट रेशियोज.
3 कोन होते हैं। अगर इनमें से कोई एक कोन एब्सेंट है तो द आई इज अनेबल टू सी और टू रिकॉग्नाइज दैट कलर एंड ऑल द कलर विच आर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर। इनमें से कोई भी एब्सेंट है तो आई उस कलर को या उसके कॉम्बिनेशन से के कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। इट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी रेटिना ही चेंज की जाएगी, रेटिना रिप्लेस की जाती है। ओके, क्लियर है। ऐसे पर्सन को कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल रेड कलर का एब्सेंट है और वो ट्रैफिक लाइट के सर्कल पे खड़ा है और सिग्नल रेड हो गया, उसे दिखेगा ही नहीं, वो वहीं खड़ा रहेगा। या ग्रीन है, एब्सेंट है, ग्रीन हो गया तब भी नहीं दिखेगा, उसे पहचान ही नहीं पाएगा, तो इसको कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। तो इसका करेक्शन क्या है? ओनली रिप्लेसमेंट ऑफ रेटिना। और 6th है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों होता है ऐसा। तभी आप ऐसा कीजिए, एक बकेट में वाटर भर दीजिए, वाटर। ओके, बकेट पीवीसी की बकेट है या मेटल की है, भर के रख दीजिए, 2-3 दिन छोड़ दीजिए, लेफ्ट फ्री। 2-3 दिन बाद उसका पानी है बाहर निकाल लीजिए। अब बकेट के साइड से देखिए कैसा दिखता है, बहुत स्मूथ हो जाता है, चिकना सा हो जाता है। वो व्हाट द रीजन? उसके वॉल्स पर, बकेट के वॉल्स पर लेयर जमा हो जाती है, लेयर। ओके, सेम थिंग अबाउट द आई। आई के बारे में जानते हैं आप। आई ये लेंस होता है, इसके इधर जो होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है, और इधर जो होता है कॉर्निया के इधर ये होता है एक्वस ह्यूमर, ये होता है वाटरी, और ये होता है जेली टाइप, जेली टाइप। अब जब आई के इधर लिक्विड भरा हुआ है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहां पर कुछ लेयर जमने लगती है, धीरे धीरे लेयर जमने लगती है यहां पर, ये लेयर। ओके, और धीरे धीरे जमते जब ज़्यादा होगी तो इसका विजन डिक्रीज होगा, और जब ज़्यादा होगी तो इट मे ओपैक होगा, तो विजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं इट इज़ ड्यू टू द एज। ऐसा नहीं होता, हर आई में होता है ये, क्योंकि लेयर तो जमना स्टार्ट तो पहले से होगी, ज़्यादा एज में तो ये ओपैक हो जाता है, लेकिन कैटरैक्ट होता है हर एक में होता है। अब इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं मैं रीजन बता चुका हूँ आपको। यहाँ से लेयर जम जाती है, इस लेयर को कैसे भी हटाना है। अब याद रखना, इट द इनर पोर्शन, ये जेली टाइप है, इनर पोर्शन है, तो इसको तो मैं हटा ही नहीं सकता। क्या करते हैं, सर्जरी से ये लेंस को रिमूव कर देते हैं और इसकी प्लेस पर आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। आर्टिफिशियल भाई अंदर से बाहर होता तो मैं कर भी सकते थे, ये क्लीन कर सकते थे, लेकिन अंदर की साइड से होता है ये, क्योंकि ये जेली टाइप होता है, तो इसको लेंस को ही रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस रखते हैं। इट इज क्लियर? चलिए अब लेते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट कब छोटा दिखता है, कब बड़ा दिखता है। विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? देखिए, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई नोन एज विजुअल एंगल। एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई इज नोन एज विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ओके, यहां आई, तो यहां से मैं बना सकता हूं, इट नोन एज विजुअल एंगल। एक इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, इट इज ऑब्जेक्ट, हायर इज द विजुअल एंगल ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन आवर आई। हायर is the visual angle greater will be the size of image formed on our eye, on our eye। क्लियर? कैसे होगा देखिए, ये आई, थोड़ा सोच के देखिए जरा गौर से, ये मेरा रेटिना,
ओके। ऑब्जेक्ट मेरे पास दो पोल्स हैं, एक पोल है ये ए बी और एक थोड़ा दूर है ये वाला है सी डी, बट हाइट इज सेम, ये भी एच हाइट का है और ये भी एच हाइट का है। अब देखिए इमेज कैसे फॉर्म होगा इसका। एक रे तो मैं यही ले सकता हूँ, ये येलो पॉइंट। अब यहाँ से देखिए ऐसे जाएगी रेज, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, हियर विल बी द इमेज। ये इमेज बन रहा है ए बी का, तो कह सकता हूँ ए डैश एंड बी डैश। दिस एंगल इज अल्फा, विजुअल एंगल। चलिए यहाँ से देखिए, अब जरा इस पॉइंट को देखिए जरा, बी से डी से ले रहा हूं तो रेज ऐसे जा रही होगी, इट इज सी डैश एंड डी डैश। देख रहा है क्लियर कौन सा दिख रहा है मुझे बड़ा, ए बी या ए डैश बी डैश या सी डैश डी डैश? कन्फर्म। साइज दोनों का एक ही है, लेकिन मेरे आई पर जो बन रहा है इमेज ए डैश बी डैश ज़्यादा बन रहा है। अब इसको सोच के देखिए जरा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो अब साइज ऑफ ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन सी डैश एंड डी डैश। हायर इज द विजुअल एंगल, ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द आई। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। हम विजुअल एंगल इंक्रीज कर देते हैं, विजुअल एंगल इंक्रीज करके उसको बड़ा देख सकते हैं। अब देखिए विजुअल एंगल तो वैसे ही इंक्रीज कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कैसे। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इतनी दूर रखा हुआ है, अगर मैं ऐसे करूं तो विजुअल एंगल विल इंक्रीज और नॉट। अगर मैं बिल्कुल पास ले आऊं तो पूरे ऑब्जेक्ट को देख भी नहीं सकता, विजुअल एंगल बहुत बढ़ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको 25 सेंटीमीटर से पास लाऊंगा, दैट इज डी, क्लियर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई। 25 से कम लाऊंगा तो ब्लर हो जाएगा, मुझे सही नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ये इट इज क्लियर। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं 25 से कम नहीं कर सकता। वैसे तो ये डिस्टेंस डिक्रीज करके वी कैन इंक्रीज द विजुअल एंगल, क्लियर। बट द इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डी से पहले रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन डी, तो आई जो इमेज बनाएगी दैट विल बी ब्लर। सो वी विल इंक्रीज द विजुअल एंगल in telescope and microscope by using a lens or mirror. So next topics are microscope and after that will be telescope. Okay.